Good morning, students. Today, in this science class, we will discuss about importance of pH in everyday life. Now, pH has great importance in our daily life. Plants and animals are also pH sensitive. Our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. ओके हम सभी जो है ऑर्गेनिजम्स है इस संसार में सभी एक निश्चित पीएच पे उनकी बॉडी काम करती है। तो पीएच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। पीएच की हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। और जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो रेन वाटर क्या कहलाता है? एसिडिक हो जाता है। और सच अ रेन इज़ नोन एज एसिडिक रेन। यू नो दैट एसिडिक रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। सो जो रेन है उसका पीएच भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे नेचर में पीएच की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब ऐसा पानी जो वाटर बॉडीज़ में फ़्लो होता है तो रिवर्स और उनके पीएच को भी एसिड कम कर देता है, उसको भी एसिडिक बना देता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स in which we can see the importance of pH. Now pH plays a very significant role in biochemical reactions. For example, the blood in our bodies is maintained at a pH value of 7.35 to 7.45. In our body, we know that the fluid is the blood is the important fluid in our body. It is a connective tissue which connects all the parts to each other, and in the blood work at a narrow range of pH that is 7.35 to 7.45. तो pH को वर्क करने के लिए स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम चाहिए जिसपे जो ब्लड जो है इस pH पे काम करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है द स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यू ऑल नो दैट in digestion of food we have studied that HCl is one of the most important part which is a component which is released in the stomach and which helpful in the digestion of food. It help in the activity of the pepsin enzyme, so it is very much important. So in stomach the acidic medium is maintained in which food is digested, so that is the importance of pH in our body. Now similarly in the mouth, the bacteria present in the mouth act on sugar and food particles remaining in the mouth after eating, and they produce acids. So that acidic medium is harmful for our mouth, which is produced by bacteria. So the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food or use toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth so as to prevent the tooth decay. So मुंह में जो बैक्टीरिया है वो अपनी एक्टिविटी करके एसिड रिलीज़ करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें बेसिक टूथपेस्ट है उनका यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स in which we can see that how pH is important in our body. So in our body, in our digestive system, again I'm explaining about the hydrochloric acid, how it works in our body. Now in our digestive system, the pH, importance of pH, hydrochloric acid is produced in the stomach to help in digesting food. However, when the amount of acid exceeds a certain limit, it causes acidity and pain. This acidity can be neutralized by taking a mild base called as an antacid. Okay, हमारी बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन एंजाइम के लिए बहुत ज़रूरी है स्टमक में. एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन अपनी एक्टिविटी करता है. यू ऑल आर फैमिलियर अबाउट दिस. लेकिन अगर हद से ज़्यादा अगर ये एसिड सिक्रीट हो तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. उस कंडीशन में क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी. तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें कोई बेस लेना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि हम बेस लेते हैं इनो. ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है मेनली.
सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके बाद में हमें रिलीफ फील होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में और देन वी फील रिलीफ। सो दैट इज़ pH. pH is very important in our digestive system. Importance of pH. Next, pH of soil. Soil also works at a optimum pH. ठीक है, जो मिट्टी है वो भी एक निश्चित pH पे ही अच्छा काम करती है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तब भी हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, उससे पहले सॉइल की टेस्टिंग करवाते हैं कि वो मिट्टी उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सही है या नहीं है। अगर वो मिट्टी सही नहीं है, सही किस मायने में, अगर वो बहुत एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एसिडिटी रिमूव करने के लिए, मिट्टी की एसिडिटी रिमूव करने के लिए उसमें बेस डालना पड़ेगा जिससे कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अगर बेसिक हो गई है ज़्यादा तो उसमें थोड़ा एसिड में डाल के उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो द प्लांट्स ग्रो ओनली इन सॉइल दैट हैव ए डेफिनेट pH रेंज। सो हाईली एसिडिक सॉइल्स आर ट्रीटेड विद क्विकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट टू रिड्यूस इट्स एसिडिटी। अगर कहीं पर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या करना होता है, उसमें बेस मिलाना होता है। क्विकलाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाना पड़ता है या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाकर, बेसिक सब्सटेंसेस मिलाकर उसकी एसिडिटी को कम करना होता है जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो अच्छा उसमें आउटपुट दे सके। सो द सॉइल भी एक निश्चित pH पे ही अपना काम करती है। सॉइल आर ऑल्सो pH सेंसिटिव। सिमिलरली tarnished vessels, copper vessels are tarnished due to the formation of a layer of basic copper oxide. This can be removed when it is rubbed with the citric acid present in lemon. Copper oxide forms copper citrate with citric acid and is washed away, giving a shine to the vessel. Okay. Similarly, जो tarnished vessels होते हैं, tarnished vessels कई बार copper vessels के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, अनवांटेड लेयर, ठीक है, जिससे उसकी चमक कम हो जाती है। वो बेसिक ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है उसके और कॉपर ऑक्साइड की, तो उसको, उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हमें कोई एसिड का यूज़ करना पड़ता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो हम अगर लेमन का भी यूज़ करें और लेमन को उसके ऊपर हम लगाएं, लेमन की लेयर को रब करें, तो वो जो बेसिक ऑक्साइड लेयर है, कॉपर सिट्रेट, जो सिट्रिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, वो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलकर कॉपर सिट्रेट बनाता है। ओके, और जो कि उसके साथ वॉश हो जाता है, उसके साथ निकल जाता है अगर हम जब उसको लेमन से साफ़ करते हैं तो यहाँ भी वही हुआ। बेसिक लेयर थी, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमने क्या किया, एसिड का इस्तेमाल किया जिससे कि वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए। ठीक है, नाउ सिमिलरली मैंने पहले भी आपको अभी बताया कि pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अगर मुंह में pH चेंज होगा तो उससे टूथ डीके हो सकता है। ठीक है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। टूथ डीके कब होता है, जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए। टूथ इनेमल, जो हमारा टूथ, जो टीथ में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है दैट इज़ कॉल्ड टूथ इनेमल, ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ओके, लेकिन ये जो है ये भी एसिड से करोड होने लगता है अगर बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन हमारे मुंह के अंदर होने लगे तो। कैल्शियम फॉस्फेट भी डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज़ कॉरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। लेकिन अगर मुंह का pH 5.5 से नीचे होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट भी करोड होने लगेगा। ठीक है, इस धीरे धीरे ये फीका होने लगेगा या इसमें जो घिसने लगेगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। So the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic. For cleaning the teeth we can use
toothpaste which are basic, which can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. ठीक है, तो अगर ये जो हमारे मुंह में अगर खाना कहीं रह जाता है तो उस पर बैक्टीरिया तो हर जगह हमारी बॉडी में, मुंह में भी हैं, लेकिन अगर खाना रह जाएगा, ठीक है, या स्वीट रह जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया अपना वर्क करेगा उस फूड पर और एसिड रिलीज़ करेगा. ये एसिड मुंह में धीरे धीरे, यही एसिड मुंह में क्या करते हैं, ये जो टूथ इनेमल है इसको डिग्रेड करने लगता है, इसको कॉरोड करने लगता है. सबसे बेस्ट वे है कि हम टूथपेस्ट यूज़ में लें जिनमें बेस प्रेजेंट हो, जिससे कि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए. ओके, और हमारा माउथ जो है वो सेफ़ रहे. सो वी शुड यूज टूथपेस्ट हैविंग बेसिक कंपोनेंट्स. Similarly, self-defense by animals and plants through chemical warfare. Not only this, in nature, some animals also used acids to prevent themselves. Some acids and bases are present in animals and plants. नेचर में भी कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनमें नेचुरल एसिड एंड बेस प्रेजेंट होता है, और कुछ एनिमल्स अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एसिड जो है एनिमल्स की बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, जैसे बी स्टिंग जो है उसको जब हनी बी जब काटती है तो उसके बाद बहुत इरिटेशन होता है. ओके, वो इसलिए होता है बिकॉज हनी बी स्टिंग है मैथेनोइक एसिड. हनी बी स्टिंग जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, हनी बी स्टिंग में मैथेनोइक एसिड होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, और जिस वजह से इरिटेशन होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है. तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड एंड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. ठीक है, इसी तरह से अगर हम उस जगह जहाँ मधुमक्खी ने काटा है उस जगह कोई बेस अगर हम रब कर दें तो हमें रिलीफ मिलता है. ओके, यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ. अगर हम बेस, क्योंकि वो जो एसिड जो हनी बी ने छोड़ा है, या आंट जो स्पेशली जो रेड आंट्स होती हैं वो भी कई बार इरिटेट करती हैं, अगर वो काटती हैं तो काफ़ी इरिटेशन होता है, पेन होता है. अगर उस एरिया में हम बेस रब करें या सोडियम बाइकार्बोनेट या हम ये कहें कि कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाएं तो हमें काफ़ी रिलीफ फील होता है, क्योंकि उसमें बेस होता है जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है, तो इस वजह से सिमिलरली जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट द मैथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन. ओके, जो नेटल की लीव्स होती हैं, नेटल एक प्रकार का हर्बेशियस प्लांट है विच ग्रोज इन द वाइल्ड. इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली. दिस इज़ ड्यू टू द मैथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम. नाउ जो नेटल लीव्स होता है, स्पेशली जो हिली एरियाज़ में मिलता है, बिच्छू का पौधा बोलते हैं इसको, इसके जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं इसमें जब उसको छूते हैं, कांटेदार जो लीव्स होती है उसमें स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, जब उसको छूते हैं तो ये उसमें से मैथेनोइक एसिड सिक्रीट होता है, और पूरी हम ये कहें जो जिस एरिया से हमने टच किया वहाँ पेन होता है, इरिटेशन होता है, तो इट इज़ ड्यू टू द मैथेनोइक एसिड. ठीक है, तो प्लांट्स में भी एसिड्स प्रेजेंट होता है. Now a traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant which often grows besides the nettle in the wild. Now जो एक इसी नेटल प्लांट्स के, जो बिच्छू का प्लांट होता है, इसी के आसपास पहाड़ों में जो है डॉग प्लांट भी उगता है, और ये डॉग प्लांट का नेचर होता है बेसिक नेचर. अगर नेटल प्लांट कहीं से नेटल की लीव्स भूले से एक्सीडेंटली हमने टच कर ली है तो हमें इरिटेशन होगा. उसी एरिया में अगर हम डॉग प्लांट की लीफ रब कर दें तो हमें रिलीफ मिलता है. क्यों? क्योंकि डॉग प्लांट का नेचर बेसिक होता है. ठीक है, तो इस वजह से ये, और वहाँ के लोग जानते हैं रेमेडीज़, तो अगर कोई एक्सीडेंटली नेटल प्लांट की लीव्स को टच करता है तो वहाँ जो लोकल लोग हैं वो डॉग प्लांट की लीव्स को उस जगह रब करते हैं और उसको सही करते हैं. तो इस तरह से कुछ ट्रेडिशनल रेमेडीज़ हैं जो कि ऐसे स्टिंग्स वगैरह में यूज़ में लिए जाते हैं. सो हम ये कहें कि नेचर में भी इस तरह से पीएच, नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो पीएच सेंसिटिव. ठीक है, वो भी अपने वारफेयर में जो है केमिकल्स का, इन एसिड्स एंड बेसिस का यूज़ करते हैं. नाउ सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स.
कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनमें कुछ एसिड्स प्रेजेंट होता है. इनके अलावा कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है. सो देयर इज़ अ टेबल इन विच द नेम ऑफ सम ऑफ द एसिड्स आर गिवन. विनेगर जिसको कि हम सिरका बोलते हैं, उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड. ऑरेंज इज़ अ सिट्रस फ्रूट, सो इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. टैमरिंड, इमली, उसमें टार्टैरिक एसिड प्रेजेंट होता है. टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. सिमिलरली सोर मिल्क दैट इज़ कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. लेमन bears citric acid. It is also a citrus fruit. Now ant sting में मेथेनोइक एसिड होता है, that is also called formic acid. Similarly nettle sting also has मेथेनोइक acid. Nettle sting में भी मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है. So these are some of the naturally occurring acids. Now you have to learn these. Now students, go through this topic and try to understand it. Okay, thank you.